Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture, we have saw about jumping, jump. That was where we have saw about animals and birds having different kinds of movements, like some animals jump, some animal walk, some animal runs, some animals and birds that flies. So we have saw these different kinds of movements between different animals. Then we have saw about kangaroo, frog, then birds and camels. There are various types of movements that they do. So this we have saw in our previous lecture, that was jump. Then we have saw about dance drama, where we have saw drama of birds that they want to change their look, their gesture. Like crow want to become a doctor. Then cock want to become a peacock, and sparrow want to become something, but he did not get anything, so he is normal like a sparrow only. Then we have read out the dramatic song, that was, I will repeat. All the birds in a certain bough choose to go for a complete makeover, so they just decided to exchange clothes with each other for a change. The snow white cloak of the crane was put on the crow's body frame. He looked really smarter and walked around like a doctor. The cock felt he was very strong and grabbed the peacock feather long, but the poor fellow found it tough to walk around with the heavy stuff. The poor little sparrow was filled with sorrow. Exchanging with partner was hard to decide. She wore her brown feather all with pride. So this dramatic song we have saw in our previous lecture, that was dance and drama. So students, I hope you have understood our previous lecture. Now students, let's move further. In today's lecture we are going to see the next topic, that is drama, in which we are going to see the two topics, that is introduction to acting and voice modulation. So students, are you ready to learn the new topic? Very good. So without wasting your time, kindly ओपन योर EVS कंबाइंड बुक पेज नंबर 88. तो आज हम नया टॉपिक चालू करने वाला है, नए पार्ट का, लर्न पार्ट का नया टॉपिक देखने वाले हैं. वो नए टॉपिक में हम आज 2 पार्ट लर्न करने वाले हैं. सो ड्रामा ये टॉपिक है, उसके अंदर हम 2 पार्ट जो नए लर्न करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? आप रेडी हो नए पार्ट के लिए? वेरी गुड. तो अभी आप अपनी EVS कंबाइंड बुक की पेज नंबर 88 खोलो. So let's start with a new topic. First we will see about introduction to acting. ड्रामा, पहले ड्रामा में हम इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग देखें. पहले ड्रामा क्या है, ड्रामा यानी क्या है? सो ड्रामा मतलब जहाँ पे हम वेरियस एक्टिंग, वेरियस एक्शंस, वेरियस डायलॉग, बॉडी मूवमेंट का अलग अलग जो फेसेस, अलग अलग जो एक्शंस लेती है, उसको हम ड्रामा कहते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा टीवी जब आप देखते हो तभी वहाँ पे आप अगर कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी में आप हर एक का रोल अलग अलग देखते हो. कोई अच्छा रहता है, कोई बुरा एक्टिंग करता है, कोई इनोसेंट वाला एक्टिंग करता है, कोई रोने का एक्टिंग करता है. तो वो सच्ची में वैसे कर रहे हैं, वैसा नहीं है. वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक्टिंग, ड्रामा कर रहे हैं. अगर आपने कोई स्किट देखा हो, कोई ड्रामा देखा हो, उसमें भी आप देखते हो कि जो रोल कर रहे हैं, अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल कर रहे हैं कि मम्मी का रोल कर रहे हैं, पापा का रोल कर रहे हैं, बहन का, भाई, तो रियल में वो वैसे नहीं है. उनको वो रोल दिया गया है, उनको वो जो ड्रामा है वो करने के लिए बोला गया है. अभी एग्जाम्पल होगी तो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो. सब लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो, देखते ही होंगे. उसमें अगर आप देखोगे तो हर एक जो फैमिली है वो रियल में वैसे नहीं है, उनको वो वैसे करने के लिए दिया है. जो बापूजी है तारक मेहता के उल्टे चश्मा में, एग्जांपल दे रही हूँ, वो कैसे बुढ़ा बापूजी रहते हैं उनका रोल कर रहे हैं. तो रियल में अगर देखने जाएगी तो वो वैसे नहीं है. वो तो रियल में एक नॉर्मल इंसान है जो यंग है, पर वहाँ पे वो जो सीरियल है उसमें उसको वो एक्टिंग करने के लिए बोला है. तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वो ड्रामा कर रहे हैं, लोगों के सामने एक्टिंग कर रहा है. वो अपना जो टैलेंट है वो लोगों के सामने पेश कर रहा है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रामा. जैसे आपको अगर कुछ घर पे एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ
चाहिए, और अगर आपकी मम्मी या डैडी नहीं दे रहे तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा रोने का ड्रामा करते हो कि नहीं, ताकि मम्मी को लगे मेरा बेटा या बेटी रो रही है तो उसको वो मैं चीज़ ला के देता हूँ। तो आप रोने का एक्टिंग करते हो ना, तो आप रोना सच्ची में रोते हो नहीं, तो आप वो क्या करते हो, ड्रामा करते, उसको ही हम ड्रामा कहते हैं। अगर आपको टीचर ने मारा तो आप क्या करते हो, रोते हो, पर रियल में नहीं रोते हो, आप खाली टीचर के सामने एक्टिंग करते हो ना कि हाँ टीचर ने मारा, मुझे बहुत ज़ोर से लगा इसलिए फिर में बाद में आप क्या करते हो, जगह पे जाके फिर से आप नॉर्मल होते हो। तो आप बहुत सारे ड्रामा करते हो ना, येस और नो, यस। जब आपकी मम्मी डैडी बोलती हो स्कूल जाने का है तो आप सुबह सुबह बोलते हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, असल में आपकी तबीयत ठीक रहती है पर आपको स्कूल नहीं जाना होता, इसके लिए आप ड्रामा करते हो, विच इज़ बैड। तो ये जो है वो ड्रामा यानी जहाँ पे हम रियल में नहीं करते, हम खाली एक्टिंग करते हैं, दूसरों के सामने एक्टिंग करते, उसको ही हम ड्रामा कहते हैं। यहाँ पे बोला इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग। एक्टिंग यानी क्या, जहाँ पे हम हमारी बॉडी के साथ, हमारे फीलिंग के साथ जो हम एक्टिंग करते उसको ही हम ड्रामा कहते हैं। एक्टिंग यानी अगर मैंने बोला था अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको नहीं दिया जा रहा है तो आप क्या करते हो, रोने की एक्टिंग करते हो। अगर आपको खाना नहीं खाना है, आपको ये पसंद नहीं है, तो आप क्या झूठ बोलते हो ना, मेरा खाने का मन नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अगर वो चीज़ अच्छी भी बनी हो तो आप भी क्या एक्टिंग करते हो, नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि आपको बाहर का खाना खाना है। और जब भी आपको पढ़ाई नहीं करनी तो आप क्या कहते हो, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो आप एक्टिंग करके वो सो जाते हो, नहीं तो सिर दुखने का नाटक करते हो। फिर अगर आपको स्कूल में नहीं आना है तो आप सुबह सुबह क्या, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है मम्मी, आज मेरे को ना स्कूल नहीं जाना है, ये तो स्कूल में छुट्टी है, झूठा झूठा बोलते हैं और एक्टिंग करते हो। सो दिस इज़ ऑल एक्टिंग। तो ये जब आप एक्टिंग करते हो तभी क्या करते हो, आप अपने बॉडी का जो एक्शन है, बॉडी से एक्शन करते हो ना। एक्टिंग करते समय आप खाली बोलते नहीं हो, तो आप बॉडी का एक्शन करते हो। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप क्या करते हो, ऐसे दिखाते हो ना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आप एक्टिंग करते हो, बॉडी का मूवमेंट करते हो। डेमोन्स्ट्रेशन यानी क्या, तो दिखाते, कुछ करके दिखाते, उसको ही हम एक्टिंग बोलते हैं। जहाँ पे आप कुछ करके दिखाते हो, एक्शन करके दिखाते हो, बॉडी का मूवमेंट्स करके दिखाते हो, उसको ही हम डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन यानी क्या, तो किसी के सामने हम कुछ एक्टिंग या कुछ करके दिखाते, उसको ही हम डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, उसको ही एक्टिंग कहते हैं। अगर आप नीचे गिर गए और आपको चोट लगी है तो आप क्या करते हो, आप रोते हो। तो रोने का यानी एक्टिंग करना। आपका अगर पैर पे चोट लगे तो आप हाथ लगा के दिखाते कि मेरा यहाँ पे लगा है, यहाँ पे चोट लगी है, तो आप क्या करते हो, एक्टिंग करके। अगर आपसे चलवा नहीं जा रहे तो आप क्या करते हो, आप ऐसे थोड़ा बेंड होके चलते हो ताकि आप एक्टिंग करके दिखाते हो। तो उससे समझ में आता है कि आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। अपने एक्शन से, अपने बॉडी मूवमेंट से समझ में आता है कि आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उसको ही एक्टिंग कहते हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी है जहाँ पे आस्क स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्शन शोइंग द पिक्चर गिवन बिलो। तो यहाँ पे अभी आपको 6, 7, 8, 9 पिक्चर्स दिए। 9 पिक्चर्स में उन्होंने अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्शंस, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, एक्टिंग दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक्टिंग के बारे में हम देखने वाले। ईटिंग के टाइम पे आप कौन सा एक्टिंग करते हो, जब भी आप खाना खाते हो तभी आप कौन सा एक्शन करते हो, तभी आप क्या करते हो, आप बैठ के जब खाना खाते हो तभी आप बैठते हो, फिर प्लेट में खाना लेते हो और वो उठा के खाने का खाते हो ना। तो वो एक एक्टिंग हो गया, एक्शन हो गया, जहाँ पे आप अपने हाथों का एक्शन करके वो खाना खा रहे, उसको ही एक्शन या एक्टिंग या डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। जहाँ पे हमें देख के मालूम पड़ता है कि आप लोग या आप खाना खा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ईटिंग एक्शन। जैसे ये पिक्चर में आपको दिख रहा है वो लड़का खाना खा रहा है, तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि वो एक एक्शन कर रहा है जहाँ पे वो खाना खा रहा है। फिर सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वो जो लड़की है वो पानी पी रही है। आपको कैसे समझ में आए कि वो लड़की पानी पी, तो उसके जो लड़की का एक्शन है, उसका जो बॉडी एक्शन है, एक्टिंग है, उससे आपको मालूम पड़ रहा है कि वो जो है वो लड़की पानी पी रही है, क्योंकि उसके हाथ में ग्लास है, ग्लास में पानी है, वो अपने हाथों से मुंह में डाल रही है पानी। तो आपको वो फ़ोटो से, वो जो फ़ोटो है उससे मालूम पड़ता है, वो एक्शन जो है उससे मालूम पड़ता है कि वो जो लड़की है वो पानी पी रही। तो यहाँ पे वो एक्शन करके पानी पी रही है। उसके बाद जो थर्ड पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा है कि वो लड़का स्कलिंग यानी बहुत गुस्से में है। तो आपको वो पिक्चर देख के मालूम पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे का जो मुंह पे, फेस पे एक्सप्रेशन है, ऐसे गुस्से वाला एक्सप्रेशन है। फिर वो
जो लड़का है उसने अपने हाथ को फोल्ड किया है और जो नज़र से वो देख रहा है, जो गुस्से से चेहरे से वो देख रहा है, वो उससे हमें मालूम पड़ता है कि वो जो लड़का है वो बहुत गुस्से में है, वो बहुत ही एंग्री है, उसको बहुत एंगरनेस आया है, स्कर्लिंग है, वो उसको किसी बात का गुस्सा आया है। तो उसके जेस्चर से, उसके बॉडी जेस्चर से, उसके एक्टिंग से ही हमें मालूम पड़ता है कि वो जो है वो लड़का बहुत गुस्से में है। और उसके जो फेस के एक्सप्रेशन है, उसका बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो एक्टिंग है, एक्शंस है, उससे हमें मालूम पड़ता है कि वो जो लड़का है वो बहुत एंग्री है, वो बहुत गुस्से में है। उसके नीचे है वो जो लड़का दिख रहा है, उसमें आपको क्लियरली समझ में आता है कि वो लड़का है बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। क्यों वो बहुत हैप्पी है, वो खुश है, आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? वो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वो बहुत हंस रहा है, वो स्माइल कर रहा है, लाफ कर रहा है, वो बहुत जोर से हंस रहा है, लाफिंग, ही इज़ लाफिंग, यू कैन सी, अपने मुंह खोल के वो बहुत खुशी से हंस रहा है, दिल खोल के हंस रहा है। तो वो पिक्चर से आपको मालूम पड़ता है कि वो लड़का बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही खुश है। उसके बाद वाला जो पिक्चर है वहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कि जो वो लड़की है वो सो रही है। कैसे मालूम पड़ रहा है? वो जो लड़की है वो बेड पे आराम से चादर लेके तकिए के ऊपर सिर रख के आराम से वो रेस्ट कर रही है, उसकी बॉडी को रेस्ट कर रही। तो उसकी जो एक्शन है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे ही आपको मालूम पड़ रहा है कि वो जो लड़की है वो अच्छी से गहरी नींद में है और वो अच्छे से सो रही है। सो शी इज़ स्लीपिंग देयर, वी कैन कम टू नो बाय हर बॉडी एक्शन। जो एक्टिंग, वो एक्शन करे, उससे हमको मालूम पड़ता है कि वो लड़की सो रही है। उसके बाद जो पिक्चर है वहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो जो लड़की है वो नाराज़ है और रो रही है। नाराज़ है, उसका जो लड़की का मुंह का एक्सप्रेशन, उससे ही मालूम पड़ता है वो बहुत सैड है। और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उससे मालूम पड़ रहा है कि वो लड़की रो रही है, उसका कुछ तो हुआ है, इसके लिए वो लड़की अपने एक्सप्रेशन, एक्शन, एक्टिंग करके वो एक्सप्रेस करी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से कुछ हुआ है, इसके लिए वो सैड है और रो रही है। तो आपको वो पिक्चर से मालूम पड़ता है कि वो लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ हुआ है, इसके लिए वो रो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वो जो लड़का है वो अभी जागा हुआ है, यानी अभी उठ गया है, उसका अभी मॉर्निंग हुआ है, वो अभी वेकअप हुआ है। तो आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? तो अपनी बॉडी को स्विंग कर रहा है, यहाँ पे वो अपने बॉडी को स्विंग कर रहा है, अपने मूड को फ्रेश कर रहा है। तो ये पिक्चर से आपको मालूम पड़ रहा है कि वो जो लड़का है वो अभी जस्ट उठ गया है, सो के उठा हुआ है। सो यू कैन सी दैट द बॉय इज वेकिंग अप नाउ। उसके बाद वाला पिक्चर है, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो प्रेयर कर रही है। कैसे आपको मालूम पड़ रहा है? तो वो लड़की का जेस्चर, एक्शन देख के उसने अपने हाथ को जॉइन किया है और आँखों को बंद किया है और स्ट्रेट खड़ी होके वो प्रेयर कर रही है। तो उसके जेस्चर से, उसके एक्शन से आपको मालूम पड़ रहा है कि वो लड़की प्रेयर कर रही है। और जो लास्ट पिक्चर है उसमें आपको मालूम पड़ रहा है कि वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, अपने घर का काम कर रहा है, वो क्लीनिंग कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में पोछा है और वो अपने घर के जो दरवाज़ा है वो पोंछ रहा है। तो आपको उससे मालूम पड़ रहा है कि वो जो लड़का है वो अपने हाउस को क्लीन रख रहा है। तो ये सब पिक्चर से आपको क्या मालूम पड़ रहा है? तो ये सब पिक्चर से आपको मालूम पड़ रहा है कि हर एक पिक्चर में हर एक बच्चा कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो एक्शन या वो मूवमेंट, वो डेमोन्स्ट्रेशन से हमें मालूम पड़ता है कि वो कुछ तो ड्रामा या एक्टिंग कर रहा है। तो फर्स्ट में हमने देखा वो लड़का खा रहा था, ईटिंग। सेकेंड में हमने देखा वो लड़की पी रही थी, ड्रिंकिंग। थर्ड में देखा वो लड़का एंग्री है, यानी स्कल्किंग। फोर्थ में हमने देखा वो लड़का हंस रहा है। फिफ्थ में देखा वो लड़की सो रही है। सिक्स में हमने देखा वो लड़की रो रही है। फिर हमने देखा वो लड़का अभी जाग रहा है, यानी ही इज़ वेकिंग अप। उसके बाद हमने देखा वो लड़की प्रेयर कर रही है और लास्ट में हमने देखा क्लीनिंग, वो लड़का साफ कर रहा है। उसके बाद पेज नंबर 89 पे वहाँ पे हमें वॉइस मॉड्यूलेशन दिया है। वॉइस मॉड्यूलेशन में हमें यहाँ पे क्या बोला है, कलर रेड फॉर लाउड, ग्रीन फॉर सॉफ्ट एंड येलो फॉर लो। तो जहाँ पे लाउड वॉइस यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको रेड कलर देना है, जहाँ पे हम सॉफ्ट वॉइस यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको ग्रीन कलर देना, और जहाँ पे हम लो वॉइस यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको येलो कलर देना है। तो वहाँ पे पिक्चर्स दिए और बॉक्स दिए, सॉफ्ट, लो और लाउड। जो आपको लग रहा है उसके बॉक्स में जो जो कलर बोला है वो कलर करके वहाँ पे टिक करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में शाउटिंग यानी हम लाउडली करते, तो वो जो लाउडली बॉक्स है वहाँ पे आपको रेड कलर करना
है, जैसे मैंने किया है। सेकेंड पिक्चर में स्पीकिंग लवली विथ डॉल, यानी सॉफ्ट बात करें तो वहाँ पे आप ग्रीन कलर करने वाले। एक्टिंग लाइक अ वेजिटेबल वेंडर, एक्टिंग लाइक अ वेजिटेबल वेंडर यानी लाउड रहते हैं ना वेजिटेबल वेंडर, कितनी ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो यहाँ पे आप रेड कलर करने वाले। स्पीकिंग ऑन द माइक यानी लाउडली स्पीक करते हो, तो यहाँ पे भी आप रेड कलर करने वाले हो बॉक्स के अंदर। फिर स्पीकिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस यहाँ पे मेंशन किया है, तो बॉक्स के अंदर आप ग्रीन कलर करने वाले हो। उसके बाद स्पीकिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन यानी हम लो बात करते, मोबाइल पे बात करते समय आप स्लोली बात करते हो और बहुत कम आवाज़ में करते हो, तो यहाँ पे आप येलो कलर करने वाले। फिर लास्ट पिक्चर, टीचर स्पीकिंग टू द स्टूडेंट्स, टीचर कैसे स्पीकिंग करते हैं, लो वॉइस में, ज़्यादा भी चिल्लाती नहीं है और ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है, नॉर्मल वॉइस लो वॉइस में करते, तो यहाँ पे भी आप येलो कलर करने वाले हो। तो जो नीचे बॉक्स है वहाँ पे आपको जो वॉइस मॉड्यूलेशन से आप बात करते हो वो कलर से आपको करना है। तो जैसे मैंने कंप्लीट किया वैसे ही आप अपने बुक में कंप्लीट करने वाले हो। तो आप अपने EVS कंबाइंड बुक में पेज नंबर 89 पे ये कंप्लीट करने वाले हो। तो आपका होमवर्क भी यही है। तो आपका होमवर्क क्या है, आप अपनी EVS कंबाइंड बुक में ये जो पेज नंबर 89 पे वॉइस मॉड्यूलेशन है ये कंप्लीट करने वाले हो। सो नाउ लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्न इन टुडेज लेक्चर। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव सॉ अबाउट ड्रामा, इन दैट वी हैव सॉ अबाउट इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग। इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग में हमने डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्शन देखा, जहाँ पे हमने ईटिंग देखा, ड्रिंकिंग, स्कल्किंग, लाफिंग, स्लीपिंग, क्राइंग, वेकिंग अप, प्रेइंग एंड क्लीनिंग। यहाँ पे हमने वेरियस डेमोन्स्ट्रेशन, वेरियस एक्शंस यहाँ पे हमने देखा। फिर उसके बाद हमने वॉइस मॉड्यूलेशन देखा, वहाँ पे हमने सॉफ्ट वॉइस, लो वॉइस और लाउड वॉइस देखा, जहाँ पे हमने जो पिक्चर में लाउड वॉइस है वहाँ पे हमने रेड कलर किया, जो पिक्चर में सॉफ्ट वॉइस है वहाँ पे हमने ग्रीन कलर किया, और जो पिक्चर में लो वॉइस है वहाँ पे हमने येलो कलर किया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड today's these two topic. Now students, the homework is you will complete your EVS combined book पेज नंबर 18। तो आप अपनी EVS combined book का पेज नंबर 89 कंप्लीट करने वाले हो। पेज नंबर 89 कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, ये पेज नंबर 89 का फ़ोटो खींचना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो आपको ये पेज नंबर आपका 89 कंप्लीट करना है और इसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।